Hello students, in the last lecture we were studying the stages of cell cycle. In today's lecture we will continue the discussion of the stages of cell cycle in detail. So we studied in the last lecture that the cell cycle is broadly categorized into two phases. One is the interphase, which includes gap 1 S and gap 2 subphases, and another is the M phase, which is further divided into karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis is the nuclear division which occurs through these four subphases: prophase, metaphase, anaphase and telophase, and it is followed by cytokinesis, which results in the formation of two cells or division of the two cells from a single cell, which results in the division of this single cell and results in the formation of the two cells, two daughter cells. Okay, and this cell which divides and forms two cells is called as the parental cell. Now we'll discuss in detail what exactly happens in the gap 1 phase, S phase and gap 2 phases. Okay, so the first phase of the interphase, first subphase of the interphase is the gap 1. This is called as gap because this phase fills the gap between the DNA replication and the actual cell division. Okay, ये दो बहुत important phases हैं और इन दो important phases के बीच में जो gap है, that gap is filled by this phase. That is why this is called as a gap phase. Likewise, this gap between DNA replication and actual cell division is filled by another gap phase. तो इसको gap 1 बोलते हैं and इसको gap 2 बोलते हैं. Okay, that is why it is called as gap. So gap 1 phase में क्या होता है, जब कोई डॉटर सेल बन गया प्रीवियस डिवीजन में, वो डॉटर सेल अगर फिर से डिवाइड होना है तो उसको पहले ग्रो होना पड़ेगा साइज में, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करने पड़ेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, एंड देन इट विल गेट रेडी एट द एंड ऑफ G2 for another division. So it will divide in the M phase and get divided into two daughter cells. Okay, so पिछले डिवीजन से जो ये सेल बना है, इसका सेल ग्रोथ डीएनए रेप्लिकेशन इस इंटरफेज में होगा, so that it prepares itself for the next round of cell division. Okay, तो इंटरफेज के पहले फेज में मतलब गैप 1 में एग्जैक्टली क्या होता है, it is basically an interval between the M phase of the previous division and initiation of DNA replication which occurs in the S phase. Okay, S phase में जो DNA replication होता है उसका initiation suppose यहाँ पे हो गया तो उसका termination यहाँ पे होगा. तो initiation of DNA replication and previous cell division M phase, इनके बीच का जो gap या interval है, that is the gap 1 phase. And this phase is metabolically active, मतलब the cells in this phase are metabolically active. Suppose if this cell is entering into the gap 1, it is metabolically very much active and it grows in size also. मतलब ये cell यहाँ पे इस size का है, by the end of the gap 1 the cell will grow in size and it will be a larger cell now. Okay, तो इस तरीके से सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होने के वजह से इट सिंथेसाइजेस डिफरेंट कंपोनेंट्स इनसाइड द सेल एंड इट ग्रोज इन साइज. नाउ ड्यूरिंग दिस स्टेज गैप 1 the cell also synthesizes most of the cell organelles, for example mitochondria, chloroplast if it is a plant cell, then ribosomes. It also synthesizes the Golgi complexes and the endoplasmic reticulum, etc. So most of the organelle duplication occurs in the gap 1 phase. Then all different types of RNA molecules like ribosomal RNA, transfer RNA, messenger RNA, they are all synthesized in very large amount in the gap 1 phase. And the RNA molecules, they help in the production of proteins. Okay, so इस फेज में प्रोटीन्स भी लार्ज अमाउंट में बनने होते हैं, इसलिए आरएनए सिंथेसिस यहाँ पे होता है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होके फिर प्रोटीन्स बनते हैं और उस ट्रांसलेशन प्रोसेस में मतलब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए भी हेल्प करते हैं. ओके, तो
because proteins are to be synthesized, all different types of RNAs are also synthesized in the gap 1, and after the RNA synthesis, both structural and functional proteins which are required inside the cell for metabolic activities, they are synthesized. स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मतलब जो सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं या उन स्ट्रक्चर्स का पार्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस फेज में बनता है ग्रो, क्योंकि सेल को ग्रो होना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स भी इंसर्ट होना जरूरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लाइक लिपिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो इसी फेज में बनते हैं, एंड जो ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है वो भी इसी फेज में बनते हैं. ओके, साइटोप्लाज्म में जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होते हैं जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, एक्टिन फिलामेंट्स या माइक्रोट्यूबुल्स एक्सेट्रा, दे आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लिटिल अमाउंट, बट दे आर सिंथेसाइज्ड इन गैप 1 स्टेज. ओके, so different types of structural proteins and functional proteins मतलब enzymes which are required for carrying metabolic activities, reactions. तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, आरएनए सिंथेसिस के लिए, आगे चल के एस फेज में जो डीएनए सिंथेसिस होना है, उस डीएनए सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, all those enzymes, they are proteins, and those proteins are synthesized, functional proteins are synthesized in the gap 1. Okay, especially the proteins required for DNA replication are synthesized in the gap 1. In addition to that, some other proteins are also synthesized in the gap 1. अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन से प्रोटीन्स लगते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है. ओके, in addition to that, several other proteins are required for DNA replication. For example, DNA के दो स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से इनिशियली सेपरेट करने के लिए डीएनए हेलिकेज नाम का प्रोटीन चाहिए होता है. ओके, सो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, all those proteins are synthesized in the gap 1 stage of the cell cycle, and only when the materials which are required for the S phase, that is for the DNA replication, are all synthesized, then the cell enters into the S phase from the gap 1 stage. Okay, so gap 1 is basically a preparatory phase for the S phase or for DNA replication process. And gap 1 stage में cell membrane का synthesis भी होता है, organelle membrane synthesis and cell membrane मतलब plasma membrane synthesis, मतलब उसको एक्सटेंड करने के लिए जो लिपिड्स एंड प्रोटीन से इनकॉर्पोरेट करने होंगे, वो सिंथेसिस भी यहाँ पे ही होता है. ओके, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऐसे ऑर्गेनेल्स हेल्प करते हैं, क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दे आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन में मोस्टली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, तो लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड proteins are synthesized, membrane के जो proteins होते हैं they are synthesized on the rough endoplasmic reticulum. So membrane के जो दो important components है वो basically smooth and rough endoplasmic reticulum के अंदर बनते हैं, वहां से वो Golgi की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड Golgi से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं. So बायोमेम्ब्रेन सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi कॉम्प्लेक्स important रोल प्ले करते हैं, एंड this biomembrane synthesis occurs in the gap 1 stage of the cell cycle. And once everything required for the S phase is ready, then the cell enters into the S phase. Okay, so S phase में exactly क्या होता है? S phase में DNA synthesis मतलब DNA का replication होता है, and DNA are the parts of chromosomes. क्रोमोसोम्स का बेसिकली डुप्लीकेशन होना जरूरी होता है, इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. सो डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉलोड बाय और इज एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम डुप्लीकेशन व्हिच अकर्स इन द एस और सिंथेसिस फेज. ओके, एंड बिकॉज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए या क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स. ओके, मतलब पहले अगर गैप 1 में जो सेल है, इस सेल का डीएनए 2C है गैप 1 में, तो इसका अमाउंट डबल होके ये 4C होता है. C इंडिकेट्स द C वैल्यू, मतलब द अमाउंट ऑफ डीएनए ऑफ द हैप्लॉइड जीनोम ऑफ ए पर्टिकुलर सेल. एक पर्टिकुलर सेल के अंदर
उसके हैप्लॉइड जीनोम में कितना डीएनए है, ओके, दैट इज इंडिकेटेड बाय सी। अब ये सेल अगर डिप्लॉयड है, जो माइटोसिस अंडरगो कर रहा है, तो उसके लिए हम 2C लिखेंगे, हैप्लॉइड के लिए 1C, डिप्लॉयड के लिए 2C। ये बात हम ऐसे समझ सकते हैं, ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और हैप्लॉइड सेट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम होगा 23 क्रोमोसोम्स का, क्योंकि 23 क्रोमोसोम के दो कॉपीज मिलके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके। 22 ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो 23 क्रोमोसोम्स में जितना डीएनए है ह्यूमन सेल के, दैट इज कलेक्टिवली रेफर्ड एज C और C वैल्यू, एंड 46 क्रोमोसोम में जितना होगा दैट विल बी रेफर्ड एज 2C, मतलब उसके दुगना। तो 2C डीएनए अगर गैप 1 स्टेज में है तो डीएनए का अमाउंट डबल होके वो 4C हो जाएगा एट द एंड ऑफ S फेज। तो गैप 2 में, थ्रू आउट द गैप 2, द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल विल बी 4C, ओके, क्योंकि थ्रू आउट द S फेज उसका डुप्लीकेशन हो गया है, क्योंकि लेकिन पूरे S फेज में 4C नहीं होगा, क्योंकि S फेज में डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, एंड सारे डीएनए का डुप्लीकेशन जब होता है तो S फेज एंड होता है। तो एट द एंड ऑफ S फेज the DNA content of the cell is 4C, not during the S phase. During the S phase वो 2C से increase होता जाता है, okay, 2.1, 2.2, 2.3, etc. And at the end of S phase, it will be 4C. Throughout the gap 2, it will be 4C, and it will be 4C until the cell divides. और जब सेल डिवाइड होके दो सेल्स बनेंगे, दोनों सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए, इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो अगेन हर सेल में 2C डीएनए रहेगा, ओके। व्हाट अनदर थिंग हैपेंस इन द S फेज, S फेज में डीएनए का अमाउंट तो डबल हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं कहते कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, ओके। नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, दैट इज क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, दैट इज 2n। मतलब ये सेल अगर डिप्लॉयड है तो उसको 2n कहेंगे, हैप्लॉइड सेल को n कहते हैं, डिप्लॉयड सेल को 2n कहते हैं, जिसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो ये अगर सेल 2n है गैप 1 में, तो इवन आफ्टर द S phase is completed and DNA replication या क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हैज अकर्ड, उसके बाद भी गैप 2 में जो कंडीशन रहेगा क्रोमोसोम नंबर का, दैट विल बी 2n, इट विल नॉट बी 4n। डीएनए का अमाउंट बढ़ गया, 4C हो गया 2C से, लेकिन डीएनए का क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है, बट फिर भी वी यूज द टर्म क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गैप 1 में जो क्रोमोसोम होता है उसका ये सपोज सेंट्रोमेयर है और उसका ये क्रोमैटिड है, तो एक ही क्रोमैटिड से गैप 1 का क्रोमोसोम बनता है, और वो ऐसे दिखाई नहीं देता है गैप 1 में, होता ऐसे है बट उसका डीएनए एक्सटेंडेड होता है, क्योंकि इंटरफेज में डीएनए हाईली एक्सटेंडेड होता है क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में। तो ऐसा इंडिविजुअल क्रोमोसोम हमको नहीं दिखाई देता, बट एक्चुअली इफ वी आइसोलेट इट फ्रॉम द सेल एंड इफ वी अलाउ इट टू कंडेंस, ये ऐसा होता है, ओके। तो एक ही क्रोमैटिड से बना हुआ क्रोमोसोम होता है गैप 1 में, और जब वो S फेज में डुप्लीकेट होता है तो ये क्रोमोसोम अब ऐसा होता है, मतलब ये ओरिजिनल क्रोमैटिड था और उसका डुप्लीकेशन हो गया, दो क्रोमैटिड्स बन गए, बट बोथ द क्रोमैटिड्स आर स्टिल अटैच्ड टू ए सिंगल सेंट्रोमेयर। और जब तक सेंट्रोमेयर एक ही है तब तक क्रोमोसोम एक ही होता है, चाहे उसके पास एक क्रोमैटिड हो चाहे उसके पास दो क्रोमैटिड हो। तो यहाँ पे क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो गया फ्रॉम क्रोमैटिड पॉइंट ऑफ व्यू, एक क्रोमैटिड के दो क्रोमैटिड हो गए, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, इसमें जितना था उससे डबल यहाँ पे है, ओके। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते कि यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम थे तो यहाँ पे भी 46 नहीं हो, 46 का दुगना 92 नहीं हो गए, ओके। यहाँ पे भी 46 ही है, यहाँ पे 46 थे तो यहाँ पे भी 46 ही है, इसलिए हम कहते कि यहाँ पे अगर 2n है तो यहाँ पे भी डीएनए का अमाउंट 2n है एट द एंड ऑफ S फेज एंड थ्रू आउट द G2 फेज, ओके। और जब आगे चल के एनाफेज में ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, देन द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम विल बी डबल्ड, क्योंकि मतलब तब हम उसको 4C कह सकते हैं, क्योंकि अब जो सेपरेटेड क्रोमैटिड्स रहेंगे दे विल बी रेफर्ड एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। तो एक क्रोमोसोम से
क्रोमैटिड सेपरेट होने के बाद 2 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे इस तरीके के। ओके, तो ये चीजें तो हमको और एक बार आगे देखनी ही है कि एग्जैक्टली कैसे क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक्सेट्रा, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस द एम फेज इन डिटेल। ओके, अभी हमको सिर्फ ये समझना है कि ऐसा क्रोमोसोम एस फेज में आके डुप्लीकेट होता है, इसके अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, सपोज इसके अंदर ये ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का यहाँ पे एस फेज में डुप्लीकेशन हो जाएगा और फिर गैप 2 में ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये एक क्रोमैटिड हैविंग ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड ये दूसरा क्रोमैटिड हैविंग अनदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गए एस फेज में। ओके, और गैप 2 में ऐसा ही कंडीशन रहेगा, इसलिए ये डायग्राम मैंने गैप 2 में निकाला है, क्योंकि गैप 2 में डीएनए कंटेंट वाइज कोई चेंज नहीं होता है सेल के अंदर। ओके, तो इसलिए यहाँ पे डीएनए का अमाउंट तो 2C से 4C हो गया, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर 2N से 2N ही रहता है, वो 4N नहीं होता है। नाउ व्हाट अनदर थिंग हैपेंस इन द एस फेज, एस फेज के अंदर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन्स यूकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो डीएनए होता है, हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि डीएनए को रैप करना, उसको कॉइल करना, सुपर कॉइल करना, उसको फोल्ड करना बहुत जरूरी होता है। ओनली देन द लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल 2 मीटर या 2.2 मीटर जिसका लेंथ है ह्यूमन सेल के केस में, वो छोटे से नैनोमीटर साइज के या माइक्रोमीटर साइज के न्यूक्लियस के अंदर बिठाया जा सकता है। ओके, तो उस डीएनए को कॉइल करने के लिए न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं, एंड न्यूक्लियोसोम का जो कोर होता है दैट इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। हमने पढ़ा था कि 4 डिफरेंट टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, एंड इन हिस्टोन प्रोटीन्स के सराउंडिंग में डीएनए क्या होता है और रैप होता है। सो हिस्टोन प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स in association with the DNA. Okay, histone and DNA they combine together and they form chromosomes. क्रोमोसोम्स के अंदर हिस्टोन एंड डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए के साथ साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड लिटिल अमाउंट ऑफ आरएनए भी होता है। ये भी हमने न्यूक्लियस वाले पॉइंट में पढ़ा था इन द प्रीवियस चैप्टर। ओके, तो these histone proteins they are synthesized in the S phase, and in case of animal cell, मतलब ये सारे पॉइंट्स दे वर रिलेटेड टू बोथ एनिमल, प्लांट एंड फंगल सेल। जितने भी यूकैरियोट्स है उन सारे यूकैरियोट्स के लिए कॉमन है, बट फॉर एनिमल सेल्स ओनली द सेंट्रियोल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन देम दे आर डुप्लीकेटेड इन द एस फेज, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं। तो एनिमल सेल्स के अंदर जो सेंट्रोसोम्स होते हैं या सेंट्रियोल्स होते हैं, वो सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम उनका डुप्लीकेशन भी एस फेज में ही होता है। ओके, नाउ व्हेन ऑल द इवेंट्स ऑफ द एस फेज आर कंप्लीट, then the cell enters from the S phase into the G2 or gap 2 phase, which is a gap between the DNA replication and the M phase. Okay, S and the M phase. तो इसको हम प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, क्योंकि माइटोसिस से पहले होने वाला ये फेज है, दैट इज व्हाई दिस इज प्री माइटोटिक फेज। एंड गैप 1 को हम पोस्ट माइटोटिक बोलते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस के बाद में आता है। ओके, सो दिस इज पोस्ट माइटोटिक, दिस इज प्री माइटोटिक। फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज प्री रेप्लिकेटिव फेज, दिस इज पोस्ट रेप्लिकेटिव फेज। ओके, अब इस गैप 2 में या प्री माइटोटिक फेज में या पोस्ट रेप्लिकेटिव फेज में एग्जैक्टली कौन से इवेंट्स होते हैं दैट वी विल सी। तो इस फेज के अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका और ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। तो सेल ग्रोथ एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज गैप 1 में भी होता है, बट गैप 2 में भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है। एक्चुअली गैप थ्रू आउट द इंटरफेस द सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। ओके, बट एस फेज की कंपैरिजन में गैप 1 एंड गैप 2 में सेल ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज ज्यादा होता है। ओके, सो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ मतलब सेल ग्रोथ occurs in the gap 2 phase also like gap 1 and S, and इस फेज में भी आरएनए सिंथेसिस होता है। ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएस आर सिंथेसाइज्ड इन गैप 2 phase also, because this phase
is also involved in synthesis of large amount of proteins, और प्रोटीन्स बनाने के लिए जो प्री-रिक्विजिट है that is synthesis of RNA. ओके, अब यहाँ पे भी लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन यहाँ पे बनना जरूरी है that is ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है. क्यों बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में गैप 2 फेज में? क्योंकि इस ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूबुल्स बनते हैं. ये भी हमने साइटोस्केलेटन वाले पॉइंट में पढ़ा था पिछले चैप्टर में. तो माइक्रोट्यूबुल्स जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, दे फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स ऑफ द स्पिंडल एपरेटस. एम फेज में जो स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल एपरेटस बनता है, उस स्पिंडल एपरेटस के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, they are synthesized from microtubules and the microtubules are made up of tubulin protein. तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन एम फेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स फ्रॉम ईच अदर. तो एम फेज में रिक्वायर्ड है, इसलिए इसका लार्ज अमाउंट ऑफ सिंथेसिस गैप 2 में होता है. तो जैसे मैंने कहा था कि गैप 1 इज द प्रिपरेटरी फेज फॉर एस फेज, वैसे गैप 2 इज अ प्रिपरेटरी फेज फॉर एम फेज. And in general, all these three phases, gap 1, S and gap 2, they are preparatory phases for the M phase. लेकिन immediately before M phase जो preparatory phase है, that is gap 2. Okay. अब इसलिए M phase में जितने भी components लगते हैं, उनमें से कुछ component gap 1 में S में बन रहे हैं, DNA etc, cell growth etc, organelle का duplication यहाँ पे होगा. लेकिन कुछ components like tubulin proteins, some other proteins, they are synthesized in the gap 2, which are required in the M phase. Okay, M phase में और किस चीज की जरूरत है? Cell stores ATP in the gap 2 because they are required in the M phase. क्यों cell division में required है या ज्यादा required है ATPs in the M phase? M phase या cell division जो होता है उसमें क्रोमोसोम्स का बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है. ओके, क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अलाइन होते हैं पहले विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, देन दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन द अनाफेज, एंड सम अदर इवेंट्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ रीफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, ऑर्गेनेल्स एक्सेट्रा अगर इन द टेलोफेज. तो इस ओवरऑल एम फेज में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी. इसलिए large amount of ATP synthesis which are required in the M phase are synthesized in the gap 2 phase. Okay, and जो nucleus होता है it also increases in size in gap 2. Okay, मतलब DNA replication होने से, chromosome duplication होने से S phase के end में ही nucleus का वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन और भी उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म एंड एडिशनल कंपोनेंट्स सिंथेसाइज होकर गैप 2 में न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होता है. Okay, so these are the events which occur in the gap 2, and once all the events of the gap 2 are completed, then the cell enters into the M phase. Okay, अब हम इन तीनों फेजेस को कंपेयर करेंगे तो तीनों फेजेस में सबसे ज्यादा लंबा फेज, लॉन्गेस्ट फेज होता है गैप 1 फेज. ओके, एंड रिमेनिंग फेजेस रिलेटिवली कम लेंथ के होते हैं. ओके, अब जब तक सारे कंपोनेंट्स एम फेज में लगने वाले नहीं बनते हैं, तब तक सेल गैप 2 से एम फेज में नहीं एंटर कर सकते हैं. ओके, वंस ऑल द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एम फेज आर रेडी, देन ओनली सेल एंटर्स इनटू द एम फेज, एंड वंस इट एंटर्स इनटू द एम फेज, then it follows prophase, metaphase, anaphase, telophase and cytokinesis, and it gets divided into the 2 daughter cells. अब ये जो एम फेज है उसकी जो सब फेजेस है वो हमको अलग से सेपरेट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने हैं, क्योंकि उसके लिए हमको कुछ डायग्राम्स भी निकालने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली क्रोमोसोम मूवमेंट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में कैसा होता है, सेल में टेलोफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, साइटोकाइनेसिस में क्या चेंजेस होके सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनते हैं. All these things we can study only with the help of diagrams. So we will study these things separately. तो हमने यहाँ पे इंटरफेज अभी कवर कर लिया. इंटरफेज में और एक फेज हो सकता है, अगर सेल को डिवाइड नहीं होना है तो सेल won't enter into the S and G2 फेज. गैप 1 स्टेज में वो लेकिन एंटर हो जाएगा, एंड गैप 1 से वो बाहर आएगा, मतलब वो सेल साइकिल से बाहर आएगा. एंड व्हेन ए नॉन डिवाइडिंग सेल exits the gap 1 में एंटर होके वो एग्जिट करता है गैप 1 को, एंड एंटर्स इनटू ए रेस्टिंग फेज और G0 फेज.
such a cell is referred as, or such a stage of the cell is referred as the quiescent stage. Okay, so quiescent stage ऐसे cells follow करते हैं which don't divide. Okay, so cells that don't divide, they exit the gap 1 phase like this and they enter a Z0 phase which is a quiescent stage, मतलब an inactive stage. अब ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं है, जो सेल यहाँ पे एंटर कर रहा है गैप 0 में या क्विसेंट स्टेज में, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्विसेंट या इनएक्टिव स्टेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज नॉट डिवाइडेड. ये सेल डिवीजन फेज में, सेल साइकिल में नहीं है, तो डिवाइड नहीं होता है. फ्रॉम सेल डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू ये इनएक्टिव है, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज इनएक्टिव या क्विसेंट. ओके, सेल्स आर इनएक्टिव फ्रॉम cell division point of view, but they are metabolically active even in the gap 0 stage. For example, heart cells, some neurons of our body, ये divide नहीं होते. Neurons, heart cells, even the RBCs, red blood cells, क्योंकि ये टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स है, इनका फंक्शन है कोई स्पेसिफिक. डिवीजन इनका फंक्शन नहीं है, नए सेल्स बनाना इनका फंक्शन नहीं है. जैसे हार्ट सेल्स है तो उनका फंक्शन है बीटिंग एंड पंपिंग ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स द रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स. नर्व सेल है तो उसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. ओके, आरबीसी है तो उसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, कंडक्शन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द हीमोग्लोबिन ऑफ द आरबीसीज. ओके, सो इनके अपने अपने स्पेशल फंक्शंस है, तो वो अपने स्पेशल फंक्शंस करने में ही एंगेज होते हैं, वो डिवीजन के फंडे में नहीं पड़ते. तो ऐसे नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो गैप 1 स्टेज से, मतलब सेल साइकिल से, सेल डिवीजन फेज से बाहर आते हैं, दे एंटर इनटू द G0 और क्विसेंट स्टेज. बट दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, क्योंकि उनको अगर कोई फंक्शन करना है तो दे मस्ट सिंथेसाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP and they must synthesize some proteins required for executing the functions of those cells, and that is why they are metabolically active. उनके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस, या मेटाबॉलिकली they are active. Okay, so this is all about the interface, sub phases of the interface. gap 1 as G2, some non dividing cells के लिए G0 phase. अब इस फेज से रिलेटेड कुछ और अदर डिटेल्स हम देखेंगे. ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. हमने देखा था कि कुछ सेल्स गैप 1 स्टेज को एग्जिट करके गैप 0 फेज में एंटर करते हैं, और गैप 0 फेज में एंटर करने के बाद वो कोई स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. तो ऐसे सेल्स, फॉर एग्जांपल हार्ट सेल्स जिनका हमने एग्जांपल लिया था, या नर्व सेल्स या रेड ब्लड सेल्स, जो एनिमल के केस में जो स्टेम सेल्स होते हैं उनका डिवीजन होके दूसरे तरीके के स्टेम सेल्स बनते हैं, एंड कुछ स्टेम सेल्स उनमें से डिफरेंशिएट होके G0 फेज में जाते हैं और फिर वो कन्वर्ट होते हैं दूसरे सेल्स में, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs और RBCs. Some stem cells get converted into heart cells, some get converted into the nerve cells, etc. और ये सेल्स जो हार्ट के, नर्व के, ब्लड के सेल्स है, they are now in a G0 phase because they are not dividing cells. तो जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, they are called as stem cells. Okay, stem cells. And plant cells में ऐसे जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, they are called as मेरिस्टेम सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेम सेल्स. मतलब जो स्टेम सेल्स एनिमल्स में होते हैं उसी तरीके के डिवाइडिंग सेल्स प्लांट्स में भी होते हैं, उनको हम मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं. तो जो डिवाइडिंग सेल्स है, दे आर स्टेम सेल्स इन एनिमल्स, मेरिस्टेम सेल्स इन प्लांट्स, and these cells can get converted into a specialized type of cells, and when they get converted into specialized type of cells, they are in G0 phase because there they don't divide. Okay, तो इस प्रोसेस को, जहां पे एक अनडिफरेंशिएटेड सेल, मतलब जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई खास फंक्शन नहीं है अदर देन डिवीजन, सेल डिवीजन को छोड़ के दूसरा कोई फंक्शन जो सेल्स परफॉर्म नहीं करते, सिर्फ सेल डिवाइड करते रहते हैं, ऐसे सेल्स को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं. तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड एनिमल्स के अंदर स्टेम सेल्स, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं.
तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स तो सेल मल्टीप्लीकेशन के लिए डिवाइड होते रहेंगे, लेकिन उनको अगर कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने वाला सेल बनाना है तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या करेंगे, गैप जीरो स्टेज को एग्जिट करके किसी पर्टिकुलर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दैट कन्वर्जन ऑफ एन अनडिफरेंशिएटेड सेल इनटू ए पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्मिंग सेल इज कॉल्ड एज differentiation, and that particular cell which has lost the cell cycle and is now in the G0 phase is called as differentiated cell. So heart cell, nerve cell, WBCs, RBCs, they are all differentiated cells क्योंकि अब वो डिवीजन नहीं कर रहे, वो पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में डिफरेंशिएट हो गए। ओके, उनका फॉर्म डिफरेंट हो गया, मतलब वो डिफरेंशिएट हो गए। तो जब सेल G1 स्टेज को छोड़ के एग्जिट करके G0 में जाता है और कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन परमानेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ हार्ट सेल और नर्व सेल्स, न्यूरॉन, जो सेल्स फिर कभी भी सेल साइकिल में एंटर नहीं कर सकते, वो फाइनली मर जाएंगे लेकिन वो सेल डिवीजन में एंटर नहीं करेंगे। The same is true for RBCs, red blood cells. Okay? लेकिन कुछ सेल्स G0 में जाके मतलब डिफरेंशिएट होके जरूरत पड़ने पे फिर से सेल डिवीजन साइकिल में एंटर कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे सेल्स परमानेंटली डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, वो टेम्पररीली डिफरेंशिएटेड होते हैं। ओके, परमानेंटली या टर्मिनली डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, टेम्पररीली डिफरेंशिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरेन्काइमा सेल्स इन प्लांट्स। एंड फिर ऐसे सेल्स फिर से गैप जीरो से गैप 1 में एंटर करेंगे एंड वो सेल डिवीजन साइकिल फॉलो करेंगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। मतलब कोई मेरिस्टेमेटिक सेल था प्लांट के अंदर जो डिवाइड कर सकता है, डिवाइडिंग सेल है, वो डिफरेंशिएट होके G0 में एंटर कर गया, मतलब पैरेन्काइमा सेल में कन्वर्ट हो गया। ओके, टेम्पररीली डिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये पैरेन्काइमा सेल जरूरत पड़ने पे फिर से G0 से G1 में एंटर करके डिवाइडिंग सेल के फॉर्म में, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटेड सेल फिर से डिवाइड होने लगा तो उसको कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। एंड ये डी डिफरेंशिएटेड सेल अगेन सेल साइकिल को छोड़ के एक 1 और few राउंड्स ऑफ सेल साइकिल करके वो सेल डिवीजन साइकिल को छोड़ के फिर से G0 में जा सकता है और किसी दूसरे तरीके का सेल फॉर्म कर सकता है। तो इन दैट केस द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन एंड द सेल which is formed by redifferentiation is called as redifferentiated cell. ओके, तो यहाँ पे जो डी डिफरेंशिएशन से मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडिंग सेल बना वो फिर से अनडिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी जाइलम के सेल में या सेकेंडरी फ्लोएम के सेल में विच आर इन G0 स्टेज। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएशन। ओके, तो इसको और एक बार इस फ्लो चार्ट के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। जो डिवाइडिंग सेल्स हैं प्लांट के अंदर उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल है जो अनडिफरेंशिएटेड डिवाइडिंग सेल है और वो डिफरेंशिएशन से, इस प्रोसेस से पैरेन्काइमा सेल्स बना रहा है, तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। पैरेन्काइमा सेल्स का अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। डिफरेंट पैरेन्काइमेटस सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, कुछ फूड स्टोरेज करते हैं, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स का कुछ और अलग फंक्शन हो सकता है। लेकिन ये सेल अब डिवाइडिंग नहीं है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, G0 में है, क्विसेंट स्टेज में है, लेकिन ये डिफरेंशिएटेड सेल्स है। ओके, बट ये डिफरेंशिएटेड सेल्स जरूरत पड़ने पे फिर से डी डिफरेंशिएट होकर G0 से G1 में आएंगे, देन दे विल फॉलो S phase, G2 and M phase and they will get divided into 2 daughter cells। अब इन 2 daughter cells में से एक सेल फिर से डिवीजन में एंटर कर सकता है, लेकिन एक सेल अगेन G1 से किसी दूसरे तरीके के सेल में कन्वर्ट हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। तो जब पैरेन्काइमा सेल गैप 1 में आएंगे तो उस प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन कहेंगे
एंड उससे जो मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब डिवाइडिंग सेल बनेगा दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से G0 में जाएगा, कोई दूसरे तरीके का डिफरेंशिएटेड सेल बनाएगा लाइक सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, तो हम उसको री डिफरेंशिएशन कहेंगे। ओके, ये चीजें आपको इस चैप्टर में सिलेबस में यहाँ पे नहीं बताई है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ different types of body cells of our body are formed and how different types of plant cells performing different functions are also formed. Plant anatomy chapter में हमको ये फिर से एक बार देखना ही पड़ेगा, तो वहां पे चीजें ठीक से समझ में आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे ये पॉइंट कवर कर लिया बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द सेल साइकिल। ओके, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर में भी ये फिर से आपको आ जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स वहां पे हमको पढ़ने हैं। एंड जूलॉजी के अंदर भी आपको किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज बनते हैं, डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसीज, वो भी देखना है, तो वहां पे भी सेम कंसेप्ट आएगा। ओके, सो बहुत सारे कंसेप्ट से कनेक्टेड है ये कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, एंड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सेल साइकिल हमने यहाँ पे वो समझने की कोशिश की। ओके, होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो इस सेल साइकिल वाले पॉइंट को हम यहाँ पे रोक देंगे, इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स हमको देखने हैं, दोज वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।